Okay, so dear students, today we are going to discuss here the microbial growth, right? In the first semester, we already discussed about the various types of microorganisms, specifically the bacteria, its the morphology and structure of bacterial cell, characteristics of the bacteria, right? And in the previous semester already we discussed about the various types of nutrient medium and what various types of factor required for the microbial growth or for the bacterial culture, right? So as a biotechnology students, you know very well, in many times whenever we try to culture the bacteria inside the laboratory or any microorganism, right from the bacteria, virus, fungi, algae, right? So many different types of microorganisms present in our environment or in our nature, and whenever we try to culture the particular microorganism in our laboratory or in vitro condition, that is known as in vitro conditions, okay? So in the laboratory we should provide the proper nutrient medium to the microorganism, and we should provide the all factors like pH, then temperature, then oxygen, right? So many different types of factors which are responsible for the proper growth of microorganisms, and whenever we provide the suitable condition in the laboratory in the form of medium and other factors, then your bacteria able to survive, your bacteria able to grow in a laboratory very well, right? But now today we are going to discuss here, whenever we provide the medium to the bacteria, so how your bacteria grow inside the medium. It is continuously grow, or there is maybe the various types of phases again. Then there is a lag phase, log phase, stationary phase, and death phase is there. So today we are going to discuss here the different phases of the microbial growth or bacterial growth, right? But before going to discuss about the growth curve of the bacteria or microbial growth curve, first of all I would like to explain you what is actually the microbial growth, okay? So dear students, microbial growth nothing but the it is actually the increase in cell number, not in cell size, okay? It means what कि एक सेल से दो सेल होना, दो सेल से चार सेल होना, चार सेल से आठ सेल होना, that is actually the microbial growth, right? But when we talking the growth in general manner, so कोई एक छोटा बच्चा है, वो 5 साल का है और फिर 15 साल में उसका हाइट बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया, सो अपन उसको भी ग्रोथ हो गई करके ऐसे बोलते हैं. बट whenever we talking about the growth which is related to the microbial organism, so at that time only the growth nothing but the increasing number of the microbial cell, okay? So वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना मीन्स माइक्रोबियल ग्रोथ होता है इसमें, ओके? ना कि सेल का साइज बड़ा होना. एंड यू नो वेरी वेल, इफ यू watch my video on the cell division, right? So before the cell division, each and every cell, it may be the animal cell or it may be the small microbial cell, that cell should be the enlarged, right? And enlarged means what? Whatever the component is present inside the cell, that component should be doubled, okay? Because that cell want to produce the two daughter cell, right? Means from the one cell there will be the formation of two cell, from two cell then there will be the formation of four cell, right? So this type of exponential growth of bacterial cell occur in the laboratory whenever we try to grow the any bacterial cell inside the nutrient medium, okay? So now it is clear that the microbial growth nothing but the increase in the cell number, okay?
and in your syllabus there is a one terminology, that is a generation time. Okay, so that generation time means what? Generation time nothing but the time is required to produce the daughter cell from parent cell. Okay, मीन्स एक बैक्टीरियल सेल से डिवाइड होके दो सेल बनने तक का जो टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं. ओके, सो ठीक है, अपन दो डेफिनेशन देखे कि माइक्रोबियल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर नॉट इन द सेल साइज, and generation time means the time required to produce the daughter cell from the parent cell. Okay, now I would like to explain you normal plant cell, animal cell divide and produce the daughter cell, right? But that mechanism is different. आपकी प्लांट सेल या एनिमल सेल जो डिवाइड होती है माइटोसिस मेयोसिस से और डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, वो सेल डिवीजन और बैक्टीरियल सेल का जो डिवीजन होता है इनमें अंतर है, इसमें डिफरेंस है. ओके, सो हाउ दिस बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और हाउ द बैक्टीरियल सेल डिवीजन इज डिफर फ्रॉम द अदर सेल्स. ओके, सो बेसिकली द बैक्टीरियल सेल divide itself and produce the daughter cell by using the binary fission. ओके, सो बाइनरी फिशन के तौर पे बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होके डॉटर सेल बनाती है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली द बाइनरी फिशन? ओके, सो यू कैन सी इन द स्लाइड, दिस वन इज द सिंगल बैक्टीरियल सेल. नाउ इट इज इमैच्योर. ओके, बट व्हेनेवर this bacterial cell attain the maturity and start to divide or ready to divide, at that time what happened? This prematured bacterial cell utilize the nutrient from the nutrient medium and the enlargement occur, right? So you can see the difference in between this prematured and matured bacterial cell, right? इसका shape और इसका shape enlarge हो गया है, right? इसके comparison में. So in this way the enlargement of the bacterial cell occur before the cell division. Okay, simultaneously inside the bacterial cell whatever the genetic material is there, that genetic material also replicate and produce the two copies, identical two copies will be formed inside the enlarged or matured bacterial cell. Okay, now this bacterial cell become the matured cell. Okay, this one is the matured cell and this matured cell double the all cytoplasmic component including the chromosomal DNA and plasmids also. Okay, so the chromosomal DNA, you can see here the two DNA strand, circular DNA is forms, right? Initially the single DNA is there, right? So all the component of the cytoplasm now doubled and this matured bacterial cell ready to divide and produce the daughter cell. Okay, so now this bacterial cell coming inside the binary fission process. Okay, so binary fission means what? कि यहाँ पे आपका ये जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंट्रीपिटली इन्वेजिनेट होती है, इधर इन्वेजिनेट होती है, मींस ये दो कंपोनेंट में ये डिवाइड होगी, यहाँ पे इन्वेजिनेट होगा. सो दिस प्रोसेस नोन एज बाइनरी फिशन. ओके, सो यहाँ पे सेप्टम जो है आपका इन्वेजिनेट होगा और इन्वेजिनेट होने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से दो सेल में सिंगल सेल से दो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे बन गए हैं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस नोन एज ए बाइनरी फिशन. ओके, एंड योर बैक्टीरियल सेल ऑलवेज ग्रो इन द न्यूट्रिएंट मीडियम with the help of this type of mechanism that is known as a binary fissions. तो आपको MCQ में यह आ सकता है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, वेजिटेटिव होता है, बाइनरी फिशन होता है या कैसे होता है, तो इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चंस. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, सो नाउ वी कंसीडर in a small test tube
we prepared the nutrient broth, okay, liquid medium we prepared for the bacterial culture. Okay, so in the small test tube there will be the 5 ml nutrient broth, and aseptically when we transfer the bacterial cells inside the nutrient medium. Okay, so it is a closed condition, means एक आपका ट्यूब लोगे, कॉटन प्लग उसको लगाना है। असेप्टिक कंडीशन में क्या करेंगे अपन कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, स्टराइल न्यूट्रिएंट मीडियम में, ओके, स्टराइल न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने कोई बैक्टीरियल सेल्स उठा के उसमें डाल दिए। ओके, अब ये बैक्टीरियल सेल उसको डालने के बाद वी शुड इंक्यूबेट दैट इन दैट टेस्ट ट्यूब्स into the incubator, okay, at 37 degrees Celsius. So why we incubate the bacterial culture at 37 degrees Celsius? Because most of the bacterial cell having ability to reproduce itself at 37 degrees Celsius. So 37 degrees Celsius is the optimum temperature for the reproduction or for the growth of bacterial culture. Okay, so आपने वो टेस्ट ट्यूब जो है उसमें आपने रख दिया। रख देने के बाद आप उसको मॉनिटर करोगे तो थोड़ी देर में थोड़ी देर में आपको वहां से निकाल के आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कल्चर। ओके, सो वहां जो बैक्टीरियल सेल आपने डाले हैं वो बैक्टीरियल सेल कैसे ग्रो होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। ओके, सो फॉर दैट पर्पज द रिसर्चर डिजाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, and this bacterial growth curve of the bacteria constructed by the researcher, and now today we are going to discuss what is the bacterial growth curve means. Okay, so you can see here on the slide, this one is the log number of viable cell. Okay, so from the 0 the number of cell will be increased, right, and this will be the time. ओके, इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे आपके माइक्रोबियल सेल का नंबर है। ओके, नाउ आप इनिशियली देख सकते हैं कि जब भी आप न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरियल सेल डालोगे तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक मीन्स आप यहाँ पे मीन्स बैक्टीरियल सेल सपोज अपन कंसिडर करते कि वहां पे 100 सेल्स आपने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले। ओके, तो आप देख सकते हैं कि उसका ग्रोथ नहीं हुआ, मीन्स नंबर जो है वो बढ़ नहीं रहा। यहाँ तक, कहां तक, ये टाइम तक। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम तक वो जो जितने सेल आपने डाले थे वो उतने ही सेल आपके न्यूट्रिएंट मीडियम में रहेंगे। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे अपन, लैग फेज बोलेंगे। अब ये लैग फेज में आपका सेल का नंबर ग्रो क्यों नहीं हो रहा, वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। सो लैग फेज के बारे में आप लिखोगे या आप देखोगे तो व्हाट हैपन इन द लैग फेज। In the lag phase is the very initial phase of the bacterial growth curve, in which whenever we added the bacterial culture or bacterial cell into the nutrient medium, so each and every bacterial cell required the some time to acclimatize. Okay, means वो nutrient medium में adjust होने के लिए कुछ टाइम लगता है उस बैक्टीरियल सेल को। आपने जैसे ही डाल दिए तो नेक्स्ट सेकंड में वो न्यूट्रिशन यूटिलाइज नहीं करती, इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो बैक्टीरियल सेल टेक टाइम टू एक्लिमेटाइज इनटू द न्यू एनवायरनमेंट, मींस इनटू द न्यू मीडियम, एंड दैट्स व्हाई दैट बैक्टीरियल सेल अनेबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस द डॉटर सेल, एंड इन दिस टाइम इंटरवल the number of bacterial cell remain as it is, मीन इनिशियली आपने जितने बैक्टीरियल सेल उसमें डाले थे वो उतने ही रहेंगे, और उस फेज को क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। ओके, अभी लैग फेज के बाद सेकंड फेज आता है आपका कि लैग फेज नाउ कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फेज, राइट। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहां से आपका धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होते गया, और यहां तक वो कंटिन्यूअसली बहुत फास्ट
और अच्छी तरीके से यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जितना इनिशियल अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले थे वो उतने ही जब तक है उस फेज को लैग फेज बोलेंगे, और वो लैग फेज मींस कुछ टाइम इंटरवल के बाद slowly the number of bacterial cell goes on increase and increase and increase, and that phase known as a exponential phase or the log phase. Okay, I will explain what is actually the exponential growth. Okay, so exponential growth means what कि यहाँ पे suppose आपने 100 डाले थे तो वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद 100 से 200 हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे, 400 से 800 हो जाएंगे, 8 से 100 1000 and 1600, इस तरह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। मींस हर टाइम मींस थोड़े थोड़े देर के बाद वहां पे क्या हो रहा है, जैसा ई कोलाई सपोज अपन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो आफ्टर 20 मिनट्स मींस लैग फेज खत्म होने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स 100 cell will be divides and produce 200 cell. Again next 20 minutes 400 होंगे और next 20 minutes में 800 होंगे। Means this one is the exponential growth of the bacterial cell. Okay, and such type of growth occur in the phase number second, and that is known as a exponential phase, और इसी phase को अपन log phase भी बोलते हैं। इसमें क्या है, लैग फेज है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लॉग फेज बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है मिस इंक्रीज नंबर ऑफ जो सेल का नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां आने के बाद मिस कुछ टाइम के बाद ये जो है इसका सेल का नंबर जो है वो फिर से कांस्टेंट होना चालू हुआ है, राइट। और यहां आप यहां पे देख सकते हैं कि काफी मिस यहां से ये टाइम तक इतने टाइम इंटरवल में वहां पे जो बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा था बैक्टीरिया का वो यहाँ पे अभी स्टैग्नेंट हो गया। ओके, मिस जो यहाँ तक जितने नंबर्स थे वो अभी फिर से वही मेंटेन हो रहे हैं, स्टेशनरी, और इसको बोलते हैं अपन स्टेशनरी फेज। मीन्स व्हाट, यहाँ पे स्टेशनरी फेज मीन्स यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। वो क्या है कि इनसाइड द बैक्टीरियल सॉरी इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम द बैक्टीरियल सेल नंबर इज कांस्टेंट, ओके, एंड दैट फेज नोन एज ए स्टेशनरी फेज, इसको बोलते हैं अपन स्टेशनरी फेज। लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये स्टेशनरी फेज क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे तो बैक्टीरिया 100 से 200 हो रहे थे, 200 से 400 हो रहे थे, 400 से 800 हो रहे थे, राइट। सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है ना बैक्टीरिया, फिर अचानक से यहां से क्या हो गया कि वो बैक्टीरियल का नंबर बढ़ नहीं पा रहा है, और मिस इसका मतलब बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरियल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो ही रहे हैं, राइट, लेकिन वहां पे कुछ सेल डिवाइड हो रहा है तो कुछ सेल की डेथ भी हो रही है, ओके। और वो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसा कि अपन क्या बोले थे कि यहाँ पे अपन ने 100 सेल डाले थे, ठीक है, 100 सेल के बाद यहाँ पे आपका बढ़ते बढ़ते अपन कंसीडर करते कि यहाँ आपके 1600 सेल्स हो गए इस टाइम तक, एक्सपोनेंशियल फेज के एंडिंग तक। 1600 सेल के बाद अभी यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो 1600 ही दिख रहा है, यहाँ पे भी 1600 ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेल डिवाइड नहीं हो रहे, क्या नहीं, सेल डिवाइड हो रहे हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि 1600 में से वहां पे आपके 32,000 सेल बनेंगे, लेकिन उसमें आधे सेल जो है 1600 सेल, उस 32,000 में से 1600 सेल जो है उनको डेथ हो जाती है उनकी। क्यों डेथ हो जाती है, फिर भी बचे कितने, मींस आपका यहाँ इस स्टेज में 1600 सेल्स थे, नाउ दैट 1600 अगेन आफ्टर 20 मिनट्स 32,000 सेल्स, राइट, 3200 सेल्स, राइट। सो 3200 में से 1600 सेल फिर से डेथ हो गई, फिर बचे कितने 1600।
सो यहाँ इस स्टेज पे 1600 थे तो यहाँ पे भी 1600, फिर से 32,000 होंगे, उसमें से आधे 50% सेल की डेथ हो जाएगी तो फिर उसमें 1600 ही रहेंगे, फिर से उनका डिवीजन होगा, फिर से आधे मरेंगे उसमें से, फिर भी उसमें उतना ही नंबर रहेगा। एक्चुअली ये स्टेशनरी फेज में होता क्या है कि वो 50% सेल्स जो है डेथ हो जाती है उनकी। तो आपको ये समझना है कि स्टेशनरी फेज में व्हाट हैपन कि इन द एक्सपोनेंशियल फेज द न्यूट्रिशन इज इन सरप्लस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में न्यूट्रिशन है उसमें, तो सारे बैक्टीरिया जो है फ्री है, सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहा है और अच्छे से वो ग्रो हो रहे हैं और डिवाइड होके उसका नंबर बढ़ रहा है। अभी ये नंबर बढ़ते बढ़ते न्यूट्रिएंट मीडियम का वॉल्यूम तो उतना ही है ना 5 ml, उस 5 ml में ये नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इतना नंबर वहां पे बढ़ जाएगा कि वो बैक्टीरियल सेल को न्यूट्रिशन स्कैरेसिटी डेवलप होगी। जैसा अपन पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कुछ लोग भूखे रहेंगे। लाइकवाइज इनसाइड द न्यूट्रिएंट ट्यूब विद इन द 5 ml न्यूट्रिएंट मीडियम the bacterial grow exponentially but at particular time interval के बाद उसमें हर बैक्टीरियल सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, ओके। और धीरे धीरे यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट उन्होंने यूज किया तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विल बी डिक्रीज, राइट। और यहाँ बचा खुचा जो न्यूट्रिएंट है उसमें अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गया और न्यूट्रिएंट कम हो गए, इसके वजह से आधे लोगों को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, वो ग्रो होके डिवाइड हो रहे हैं, और आधे लोगों को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे तो वो भूखे होके मर जा रहे हैं बैक्टीरिया। इसीलिए 50% बैक्टीरिया विल बी डाई एंड 50% बैक्टीरिया यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस द डॉटर सेल, ओके। एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल रिमेन कांस्टेंट इनटू द स्टेशनरी फेज, ओके। तो ये कहां तक चलेगा, ये कुछ टाइम इंटरवल तक ऐसे ही चलेगा कि इसका नंबर जो है बैक्टीरियल सेल का उस मीडियम में सेम रहेगा। 50% डिवाइड हो रहे हैं, 50% मर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उनका नंबर कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां अभी स्टेशनरी फेज में 50% डेथ हो रही थी और 50% को न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, इसलिए वो डिवाइड होके वो मेंटेन हो रहा था नंबर। लेकिन ये स्टेशनरी फेज में यहां से ये टाइम इंटरवल में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूट्रिएंट्स और भी कम हो गए होंगे उसमें 5 ml में। अभी न्यूट्रिशन स्कैरेसिटी इतनी बढ़ गई है कि अभी उसमें सिर्फ 20% बैक्टीरियल सेल को न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं या मिल रहे हैं, और 70% बैक्टीरियल सेल को 75% बैक्टीरियल सेल को अभी न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 50% डिवाइड हो रहे थे, 50% डेथ हो रही थी। यहाँ इस स्टेज के बाद मरने की संख्या ज्यादा है, मींस बैक्टीरियल डेथ जो है रेट बढ़ गया और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का रेट और रिड्यूस हो गया। मींस 25% bacterial cell only utilize the nutrient and reproduce the daughter cell, okay, but 70% bacterial cell die due to the unavailability of nutrient medium, okay, and that's why the number goes on decrease, okay। so overall number यहाँ पे जो मेंटेन हो रहा था वो अभी मरने वाले की संख्या ज्यादा हो गई ना, तो इसीलिए यहाँ पे जिंदा वाले जो बैक्टीरिया की जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, न्यूट्रिशनल स्कैरेसिटी के वजह से। और जब ये फेज आता है, डेथ फेज आ जाता है, तब आपको उस बैक्टीरिया को दूसरे न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने की जरूरत होती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, okay। so bacterial growth curve having the 4 stages or 4 phases: lag phase, log phase, stationary phase and death phase, okay। तो lag phase में क्या हो रहा है, lag phase में आपके बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ पा रहा है,
क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज है वो, और वो बैक्टीरिया के लिए न्यू न्यूट्रिएंट मीडिया वहां पे आया है, इसीलिए वो न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्लेमेटाइज होने के लिए उसको टाइम लेता है, वो इसीलिए वो डिवाइड नहीं होते। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें अभी वेल एक्लेमेटाइज बैक्टीरियल सेल्स स्टार्ट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट एंड स्टार्ट टू डिवाइड फास्टली एक्सपोनेंशियली। ओके, सो यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरियल सेल का। फिर से कुछ टाइम इंटरवल के बाद स्टेशनरी फेज आ रहा है। इन स्टेशनरी फेज, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, the some 50% or some bacterial cells start to divide, but simultaneously 50% cells will be die, okay, due to the unavailability of nutrition, okay, and the number of bacterial cell remain constant, but after some time again the number of bacterial cell in the nutrient medium goes on decrease and decrease due to the death rate will be increased. Okay, so 75, 65, 80% bacterial cell will be die due to the scarcity of nutrients. Okay, so these are the 4 different phases of bacterial growth curve. Okay, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बीच में, या फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है? समझ में आया ये सब कुछ? हेलो, हाँ, किसी को कुछ बीच में कोई कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है? हाँ, मैं जो बोल रहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स व्हाट, राइट? सो यू कैन सी हियर एट टाइम जीरो मीन, जब आप बैक्टीरिया किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो उसको टाइम जीरो बोलते हैं उसमें, हाँ। लेकिन जैसा अभी ये चार्ट जो है वो ई कोलाई सेल का है। नॉर्मली ई कोलाई बैक्टीरिया रिक्वायर्ड 20 मिनट्स, मीन्स उसका जनरेशन टाइम क्या है? 20 मिनट्स। ओके, सो 20 मिनट्स में क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस द 2 डॉटर सेल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन नंबर तो 0 टाइम में 0 ही रहेगा, कितने? 1 सेल रहेगा। ओके, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स, ये टाइम जो है इंटरवल, 20 मिनट्स के बाद देखो एक डिवीजन होगा, मीन जितने बैक्टीरियल सेल है वो हर एक बैक्टीरियल सेल में एक डिवीजन होगी बाइनरी फिशन से, और उस एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरिया बनेंगे। मीन्स 100 बैक्टीरिया आपने डाले थे तो उसके 200 हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ये हो रहा है, राइट? सो 1 से 2 हो रहा है। फिर आप 40 मिनट्स देखोगे तो 2 बैक्टीरिया से फिर 4 हो जाएंगे। फिर आप 60 में देखो 3rd डिवीजन आएगी, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, राइट? फिर ये 80 मिनट के बाद 4 डिवीजन हो जाएगी, राइट? और यहाँ पे आपके 16 बैक्टीरिया हो जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली द पैटर्न ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, and this type of pattern just observed in the second phase of the bacterial growth curve. Okay, dear students, now we going to discuss here the type of culture system. Okay, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जो भी आप पिगमेंट प्रोड्यूस करना है, कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना है, तो आपको उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करना होता है, राइट? तो अभी वो ग्रो करने की जो मेथड्स है या कल्चर सिस्टम बोलते हैं उसको, वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बैच कल्चर, या तो डिसकंटिन्यूअस कल्चर बोलते हैं इसको। ओके, तो बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर एंड सिंक्रोनस कल्चर, ऐसे 3 टाइप के कल्चर होते हैं। ओके, तो अपन देखेंगे एक एक कि बैच कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर कैसे होता है, और सिंक्रोनाइज कल्चर किसको बोलते हैं। ओके, सो अपन अभी देखते हैं कि पहला बैच कल्चर। ओके, सो ऑन द स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व दिस वन इज द वन टैंक। ओके, ये कंटेनर है। ओके, इसको बायो रिएक्टर बोलते हैं। बायो रिएक्टर इसीलिए बोलते हैं कि व्हाट एवर द factors means oxygen, temperature and humidity, okay, all are provided inside this chamber. Okay, so that's why this one is called as a fermenter or bioreactor. Okay, means inside this chamber we can grow the bacteria very well. Okay,
अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बैच कल्चर कैसे किसको बोलेंगे, तो बैच कल्चर किसको बोलेंगे कि सपोज जैसा कि आप अपने लेबोरेटरी में एक 5 ml का टेस्ट ट्यूब लेते हैं, राइट, उसमें 5 ml आपका मीडियम रहता है और उसमें कुछ आपने कल्चर इनोकुलेट कर देते और 2-3 दिन उसको रखेंगे, ओके, वो पूरा मिस ग्रो हो जाने के बाद फिर उसमें जब डेथ फेज आएगी तो जस्ट यू हैव टू चेंज द मीडिया डायरेक्टली, ओके। सो वो आपका वो ट्यूब वैसे रहेगा, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट में 100 माइक्रोलीटर आपको न्यू इसमें डालना पड़ेगा, ओके। फिर से वो बैक्टीरिया दूसरे मीडियम में ग्रो होगा। लाइकवाइज मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं उसमें बैच वाइज बोलते हैं ना, ये सपोज कोई प्रोडक्शन हुआ तो ये बैच का प्रोडक्शन खराब हो गया, वो बैच का प्रोडक्शन अच्छा था, इस तरह से जब बोलते हैं तो बैच मीन्स व्हाट कि इनसाइड the chamber, inside the bioreactor or fermenter, we grow the bacteria for the production of particular molecule. It may be the therapeutically important molecule, it may be the enzyme, it may be the hormone, it may be the vaccine, right? So यहाँ क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे भी पहले इनिशियली लैग फेज रहेगा, फिर लॉक फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आएगा, स्टेशनरी फेज के बाद फिर डेथ फेज आएगा और फिर ये जो है डेथ फेज में जाएगा तो फिर आपको ये जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन मिस बनेगा ही नहीं, मिस कोई मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो कंटिन्यूअस में मिलना चाहिए ना, तो आप क्या करोगे एक कांस्टेंट मीडियम में, मीन्स ये जितना मीडियम आपने प्रोवाइड किया है एक कांस्टेंट मीडियम में आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हो और वो ग्रोथ प्रॉपर हो जाने के बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो पूरा मीडियम जो है डिस्कार्ड करोगे और उस मीडियम से आपका जो कंपाउंड है, आपका जो कुछ मॉलिक्यूल है इंपॉर्टेंट, वो मॉलिक्यूल आप उसमें से प्यूरिफाई करके मार्केट में वो बेच सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसा अपन घर में खाना बनाते हैं ना, तो एक बार खाना लगाए कुकर में, ठीक है, तो कंटिन्यूअस उसमें खाना बनते रहेगा क्या? नहीं, एक बार लगाए, आज खा लिए, वो खत्म कर लिए, फिर और दूसरे दिन दोबारा लगाएंगे, ओके, और दोबारा फिर से बनेगा, फिर तीसरे दिन और बनेगा। इस टाइप का सपोज बैक्टीरियल कल्चर करते हैं तो उस कल्चर को बैच कल्चर बोलते हैं, ओके। बैच वाइज अपन वो कल्चर करते हैं बैक्टीरिया का, ओके। समझ में आया बैच कल्चर क्या है? Now we going to discuss here the another type of bacterial culture system, that is a continuous culture system, okay। पहला अपन ने देखा बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है? तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम दो टाइप से मेंटेन होता है, एक होता है कीमोस्टैट और एक होता है थर्मोस्टैट, ओके। So we will discuss what is actually the chemostat and how that chemostat is responsible for the continuous type of bacterial growth. Okay. So before going to discuss about the chemostat and turbidostat, first of all we try to understand what is actually the continuous culture. Okay. So continuous culture means what? कि आपका जो मीडियम है उस मीडियम में आपका बैक्टीरियल सेल जो ग्रो हो रहा है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में रहना चाहिए, वो स्टेशनरी फेज में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, वो डेथ फेज में नहीं जाना चाहिए, ओके। बैच कल्चर में ऐसे हो रहा था क्या? नहीं, उसमें क्या था कि आप पर्टिकुलर बैक्टीरिया डाल दिए, उसको क्लोज कर दिए, तो बैक्टीरिया पहले लॉग फेज अटेंड करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फेज अटेंड करेंगे, फिर स्टेशनरी फेज आएगा, फिर डेथ फेज आएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि अपन जो लार्ज इंडस्ट्री लेवल पे सपोज कोई प्रोडक्शन करते तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होना चाहिए ना, तो इसके लिए कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम डेवलप करते हैं अपन। तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब होता है कि यूर बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली ग्रो इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम इन अ एक्सपोनेंशियल फेज, ओके। सो आपका जो बैक्टीरियल कल्चर है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा, और ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में कैसे ग्रो करेगा, ओके।
तो वो कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट से वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो पहले आपको समझ में आया कि कंटिन्यूअस कल्चर नथिंग बट the system or device are a means of maintaining the cells population in exponential growth for long period. Okay, so continuously वो exponential growth उस मीडियम में बैक्टीरिया का होते जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे ये continuously exponentially growth होगी। और वो continuous कल्चर जो है वो सिस्टम कीमोस्टैट नाम का एक डिवाइस है या मेथड है, तो उस कीमोस्टैट में ये कंटिन्यूअस टाइप का कल्चर सिस्टम अपन डेवलप कर सकते हैं या बैक्टीरिया को कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल फेज में रख सकते हैं। तो इन ए कीमोस्टैट द रेट ऑफ एट विच द कल्चर इज डाइल्यूटेड गवर्न द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ यील्ड। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपने इनिशियली डाले थे वो कंटिन्यूअसली डबल होते जाएंगे मींस एक्सपोनेंशियली ग्रो शो करेंगे। अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो शो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहां पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैच कल्चर में आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं दिखा रहा था बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पे अपन मीडियम जो डाले पहले वो चेंज नहीं करते, वो मीडियम वैसे के वैसे ही रहती है। तो उस मीडियम में क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो टॉक्सिक बढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन स्कैरेसिटी बढ़ेगी और उसके वजह से स्टेशनरी और डेथ फेज आ रहा है, राइट। लेकिन इसमें अपन कंटिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल फेज में रखना है तो अपन क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें जो यहाँ कंज्यूम हुई मीडियम है वो मीडियम को एक बाजू से बाहर निकालना पड़ेगा और दूसरे बाजू से उस कंटेनर में फ्रेश वाली कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम डालना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन सी हियर दिस वन इज द कीमोस्टैट। ओके, कीमोस्टैट मतलब कि आप न्यूट्रिएंट मीडियम जो है कंटिन्यूअसली इसमें ऐड कर रहे हो और कंटिन्यूअसली उतना ही अमाउंट जो है यहां से निकलेगा। ओके, मींस जो कंज्यूम्ड मीडियम है, जो न्यूट्रिएंट यहाँ से डिप्लीटेड मीडियम है, वो न्यूट्रिटिव डिप्लीटेड मीडियम जो है वो इस कंटेनर के बाहर आएगा इज इन द फॉर्म ऑफ इफ्लुएंट एंड माइक्रोबियल सेल, राइट। सो डेड सेल हो गए या माइक्रोबियल सेल के साथ वो न्यूट्रिएंट मीडियम बाहर आएगी और यहाँ ऊपर से आप फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें डाल रहे हैं। अभी इसका वॉल्यूम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, देखो आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर है और यहां तक आपका मीडियम है, राइट। सो जैसे ही यहां से ये मीडियम बाहर जाएगा जितना तो ये लेवल जो है नीचे आएगा, जैसे ये लेवल नीचे आता है तो ये कंटिन्यूअसली इसमें गिर रहा है तो ये मेंटेन होते जाएगा यहाँ पे लेवल। ओके, सो जितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, मैं सपोज 50 ml सपोज पर मिनट में यहाँ पे फ्लो रेट है कंज्यूम मीडियम का, तो इसका भी उतना ही फ्लो रेट रहेगा, 50 ml पर मिनट इसमें ऐड होते जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये न्यूट्रिएंट मीडियम में जो न्यूट्रिशनल स्कैरेसिटी डेवलप हो रही थी और उसके वजह से जो स्टेशनरी फेज आ रहा था, डेथ फेज आ रहा था, वो नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पे फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं और कंज्यूम मीडियम बाहर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट जो है मेंटेन रहेगा, राइट। और वो सारे सेल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शो करेंगे, वो स्टेशनरी में कभी जाएंगे ही नहीं, राइट। सो इस टाइप के कल्चर सिस्टम को बोलते हैं continuous culture system. Okay, and this type of culture systems routinely utilized in the various types of industries or the production of industrially important products, drugs, hormones, therapeutic molecules, likewise. Okay, so जो भी आपको प्रोडक्शन करना है तो इंडस्ट्री में इस टाइप के कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज करते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्शन रेट क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसके वजह से। बैच वाले में क्या होता है कि एक बैच में जितने मिले फिर और दूसरी बैच लगाना पड़ेगा तो उसमें कंटेमिनेशन के भी चांसेस ज्यादा है इसमें बैच वाले इसमें, क्योंकि हर बार आप ओपन कर रहे हो दोबारा लगा रहे हो तो उसमें कंटेमिनेशन आने के चांसेस है। और यहाँ क्या है कि ये असेप्टिकली पूरी पैक्ड रहता है ये कंटेनर, ओके, और यहाँ कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके,
और कंटिन्यूस यहाँ ऐड होगा ये मीडियम, और यहाँ से कंटिन्यूस बाहर जाएगा, तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहेगा, उसका नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही रहेगा कंटिन्यूस मैनर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमोस्टैट। ओके, now for the continuous culture system one another approach is there, and that is known as a turbidostat. okay, so turbidostat means what कि अभी कीमोस्टैट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप मीडियम डालते हैं ना, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स इट इज केमिकल concentration, so that chemical concentration should be maintained. okay, so यहाँ पे वो मेंटेन हो रहा है, इसलिए इसको कीमोस्टैट बोलते हैं। ओके, सो मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट का वो कांस्टेंट रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द टर्बिडिटी, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ गई तो उसकी टर्बिडिटी मेंटेन होगी। मीन जैसा कि आपका एक्सपोनेंशियल फेज स्टार्ट होता है और वो एक्सपोनेंशियल फेज जो है आगे आगे बढ़ते जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आती है ना कि एंड होता है और वहां से स्टेशनरी फेज चालू होता है। तो वो स्टेशनरी फेज जो इनिशिएट होता है उसके पहले तक मींस पहले पॉइंट तक जितना बैक्टीरियल पॉपुलेशन होता है उसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी होता है। ओके, सो वो पॉपुलेशन अपन यहाँ पे मेंटेन करते हैं बैक्टीरिया का। वो कैसे करते हैं, और उसी को बोलते हैं टर्बिडोस्टैट। टर्बिडोस्टैट मीन व्हाट कि आपको पता है कि आप जो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं वो बहुत क्लियर रहता है, लेकिन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड व्हेनेवर वी ऑब्जर्व दैट न्यूट्रिएंट मीडियम आफ्टर द बैक्टीरियल ग्रोथ इट टर्न्स इनटू द टर्बिड कंडीशन, राइट। सो टर्बिड दिखता है आपका न्यूट्रिएंट मीडियम जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, सो वहां पे बैक्टीरियल सेल है इसलिए टर्बिड दिखता है। सो दैट टर्बिडिटी शुड बी मेंटेन। मींस नंबर ऑफ सेल कैसे मेंटेन कर रहे हैं, टर्बिडिटी के बेसिस पे, राइट। सो टर्बिडिटी के बेसिस पे अपन यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का पॉपुलेशन मेंटेन करेंगे। ओके, और उतना टर्बिडिटी मींस मेंटेन हो गया, मींस पॉपुलेशन उतना उससे ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम फिर से यहाँ आ जाएगी। ओके, सो न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से न्यूट्रिएंट मीडियम बाहर निकल जाएगी। एक्सेस न्यूट्रिएंट मीडियम बाहर निकलेगी कंज्यूम वाली, और न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें आ जाएगी। तो ये कैसे मेंटेन होता है आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम का रिजर्वायर है, फ्रेश मीडियम यहाँ पे रहती है। ओके, स्टेराइल मीडियम, और यहाँ से पाइपलाइन छोड़ी है आपके कंटेनर में जिसमें बैक्टीरिया आपको ग्रो करना है, राइट। और यहाँ पे एक देख सकते हैं स्पेंट आउटलेट। स्पेंट आउटलेट मीन्स स्पेंट मीडियम, मीन्स जो कंज्यूम हुआ है न्यूट्रिटिव डिप्लीटिव मीडियम जो है वो यहाँ से, जैसा ही इसका मीन्स यहाँ से ये मीडियम इसमें आएगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, जैसे ही यहाँ तक लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये कैसे होता है, ये कैसे प्रोसेस होता है, मीन्स स्पेंट मीडियम हाउ come outside the container and new medium how pour inside the container। तो ये किसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है यहाँ का टर्बिडिटी पे, राइट। सो अपन कंसिडर करते हैं कि ये फ्रेश मीडियम है, यहाँ पे भी फ्रेश मीडियम था, आपने बैक्टीरिया से कल्चर डाल दिया, वो कल्चर लैब फेज में जाएगा, लैब फेज के बाद एक्सपोनेंशियल फेज में जाएगा, राइट। एक्सपोनेंशियल फेज के में रहता है तब जब वो स्टेशनरी फेज आने के पहले तक का जो टर्बिडिटी मींस पॉपुलेशन है यहाँ का, उसका एक पर्टिकुलर ओडी रहेगा। ओके, सो वो ओडी कैसे मेजर करते हैं कि ये कंटेनर के एक साइड में अपन लाइट रखते हैं, लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट बीम पास होगा और यहाँ ये लाइट डिटेक्टर होता है। ओके, जैसा अपन पोलरीमीटर में देते हैं ना उसका ओडी, वैसे ही यहाँ पे तो ये लाइट सोर्स यहाँ से जब आएगा तो इसमें नंबर ऑफ सेल जितने जैसे होंगे उतने लाइट रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगे, और यहाँ से निकलने वाले रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिटेड रेडिएशन, तो उसकी एक वेवलेंथ रहेगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन की एक इंटेंसिटी रहेगी, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी, सपोज वो टर्बिडिटी अपन यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो टर्बिडिटी सपोज बढ़ रही है, तो टर्बिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ से जो यहाँ मिस फोटो जो सेल है, जो डिटेक्टर है, लाइट डिटेक्टर, तो लाइट्स जो यहाँ तक पहुंचने वाली है उसकी इंटेंसिटी
एक पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसकी टर्बिडिटी आपके नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गई है। ओके, सो नॉर्मल रेंज में सपोज टर्बिडिटी आती है तो यहां तक पहुंचने वाले जो वेवलेंथ है वो डिटेक्ट करेगा और ये यहां तक पहुंचाएगा, राइट। लेकिन सपोज नॉर्मल रेंज के ऊपर जा रहा है आपका टर्बिडिटी, तो ये यहाँ पे जो पहुंचने वाला लाइट है वो कम इंटेंसिटी का रहेगा और ये दिस फोटो सेल कैन डिटेक्ट द टर्बिडिटी नाउ इंक्रीज। एंड ये इंक्रीज होने के वजह से क्या हो रहा है कि वॉल्व जो है इसका, ये वॉल्व ओपन होता है और ओपन होके यहाँ न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम गिरेगी और यहाँ की जो स्पेंट मीडियम है वो बाहर चली जाएगी। ये बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है और यहाँ से मीडियम बाहर जाता है तो उस मीडियम के साथ बैक्टीरिया भी तो बाहर जाएंगे ना। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ गया था या टर्बिडिटी वो इंक्रीज हो रही है तो स्पेंट मीडियम बाहर जाएगी तो उसके साथ सेल जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर से डाइल्यूशन होगा, न्यू न्यूट्रिएंट इसमें न्यू मीडियम आएगा और बैक्टीरियल सेल का नंबर मेंटेन रहेगा इसमें। ओके, सो इन दिस वे वी कैन मेंटेन द बैक्टीरियल cell number in the exponential phase by using the turbidostat. So this is all about the turbidostat method for the continuous bacterial culture. इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? हेलो, बोलते तो जाओ ना, पूछ रहा हूँ आपका है कि नहीं है, सुन रहे कि नहीं है, कुछ भी इंटरैक्ट नहीं करते। नाउ द थर्ड सिस्टम दैट इज द सिंक्रोनस ग्रोथ। ओके, सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर सिस्टम मीन्स क्या? अभी अपन ने दो देखे, बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस सिस्टम में कैसे मेंटेन करते हैं अपन? बाय यूजिंग द कीमोस्टैट and by using the turbidostat. Okay, now we going to discuss about the third system, culture system, that is a synchronous growth culture system. Now synchronous growth culture system means what? तो क्या होता है कि सपोज आप एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने मीडियम डाला और वो मीडियम डालने के बाद आप उस मीडियम में कुछ कल्चर डाला, बैक्टीरियल सेल्स डाले, राइट, 100 सेल डाले। अभी वो 100 सेल लैग फेज के बाद एक्सपोनेंशियल फेज में जाएंगे। ओके, अभी एक्सपोनेंशियल फेज में जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि हर बैक्टीरियल सेल डिवाइड होने के लिए टाइम लगेगा ना। मीन्स द बैक्टीरियल फर्स्ट ऑफ ऑल डबल द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, enlarge its cell and then it divide with the help of binary fission and produce the daughter cell, right? So अभी जो 100 सेल आप न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले थे वो 100 सेल एट ए टाइम डिवाइड होंगे क्या? नहीं होंगे। उसमें से कुछ सेल जल्दी डिवाइड हो जाएंगे, कुछ सेल लेट डिवाइड हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल कल्चर है उस बैक्टीरियल कल्चर में आपको जो सेल जो मिलते हैं वो वेरिएबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेल फेज और सेल साइकिल का जो ये होता है उस टर्मिनोलॉजी से वो वेरिएबल होते हैं। मीन्स कुछ डिवाइडिंग स्टेज में रहते हैं, कुछ एनलार्जमेंट स्टेज में रहेंगे, कुछ स्मॉल रहेंगे, इमैच्योर, प्री मैच्योर रहेंगे। इस तरह से वेराइटी ऑफ सेल्स आपको एक ही मीडियम में दिखेंगे। सो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर और अनसिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर, राइट। सो नॉर्मली कंटिन्यूअस और बैच कल्चर में अपन ग्रो करते हैं तो वो नॉन सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर होता है। फिर सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर मीन्स व्हाट? कि वो कंटेनर में जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे एक ही फेज में होना चाहिए, सेल साइकिल के एक ही फेज में। जैसा G1 फेज में होंगे तो ऑल द 100 सेल्स अटेन एट G1 phase. After some time all the 100 cells attained M phase, S phase, M phase, right? So सेल डिवीजन का जो भी फेज होता है अलग अलग, सो सारे सेल एक ही फेज में होने चाहिए, राइट? उसको बोलते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ। ओके, सो ये सिंक्रोनस ग्रोथ कैसे अपन
मेंटेन करते हैं या डेवलप करते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इट सिंक्रोनस ग्रोथ मीन्स ए सिचुएशन or condition in which a cell culture when all the cells divide at the same time. Okay, सिंक्रोनस को ग्रोथ मीन्स क्या समझ में आया कि उसमें जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स एट ए टाइम डिवाइड होंगे. ओके, तो उस टाइप के कल्चर सिस्टम को सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर सिस्टम बोलते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म. जब मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक का स्टडी करना है तो उस टाइम आपको सिंक्रोनस कल्चर की जरूरत होती है. एंड वी शुड ऑब्टेन दैट सिंक्रोनस कल्चर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सिंक्रोनस कल्चर वी कैन study about the genetics and metabolism of the particular bacterial strain. Okay, then it is the easiest way to synchronize bacterial growth is to add some cytostatic agent so that cell does not divide and they all maintain the same state of metabolism and cell cycle. तो ये सिंक्रोनस जो मेथड होती है, सिंक्रोनस कल्चर होता है, वो केमिकल मेथड से और फिजिकल मेथड से अपन मेंटेन कर सकते हैं. कैसे मीन्स अभी आप इसका मतलब समझ में आया ना कि सारे बैक्टीरियल सेल एक ही सेल साइकिल के स्टेज में होने चाहिए. अभी कोई G0 में होगा, कोई G1 में होगा, कोई यम फेज में होगा, तो उसको सिंक्रोनाइज नहीं बोलेंगे. ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन द G0. After some time all cell attain the G1. After all cell attain the S phase. Okay, so this type of synchronous culture. तो ये मेंटेन कैसे कर रहे हैं? साइटोस्टैटिक एजेंट डाल सकते हैं. साइटोस्टैटिक क्या करेगा कि द ड्रग्स विच प्रिवेंट द सेल डिवीजन मीन्स कुछ पहले मैच्योर हो गए फिर भी वो उस स्टेज में जाके रुकेंगे, वो डिवाइड नहीं होंगे. जो पीछे में है G0 वाला है वो G0 में G1 में आएगा, G1 से S फेज में आएगा और यम फेज में जाएगा. मीन्स S फेज से साइटोटॉक्सिक साइटोकाइनेसिस स्टेज में जाएगा. ओके, सो कोई एक सेल मीन्स फर्स्ट स्टेज में है, कोई सेकंड स्टेज में है, कोई थर्ड स्टेज में है, कोई फोर्थ स्टेज में. फोर्थ के बाद सपोज सेल डिवाइड हो रही है तो ये साइटोस्टैटिक एजेंट डालने की वजह से क्या होता है कि फोर्थ स्टेज में जो सेल्स है वो फोर्थ स्टेज में ही वैसे ही रहेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे. 0 वाले 1 में आएंगे, 1 वाले 2 में आएंगे, 2 वाले 3 में आएंगे, 3 वाले 4 में आएंगे. और सभी सेल क्या है 4 वाले स्टेज फोर्थ स्टेज में आके रुक जाएंगे. राइट, मीन्स क्या होगा कि उस कल्चर में डिफरेंट सेल अटेंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकिल. But due to the addition of cytostatic agent, we maintain all the cell into the same stage. ये सारे के सारे fourth stage में आ गए. Now that all the cells remove from that culture medium and grow into the new nutrient medium, right? So इस type के this one is the chemical method to obtain the synchronous culture. Okay. फिजिकल मेथड भी है उसके लिए. सो फिजिकल मेथड में अपन क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं. इस पर्टिकुलर साइज का अपन फिल्टर यूज करते हैं. तो जैसा मैंने बताया ना कि बैक्टीरियल सेल इनिशियली राउंडेड रहता है फिर एनलार्ज होता है. राइट, सो आपको एक ही स्टेज में लाना है. तो क्या है कि उसमें से सपोज आपने कुछ बैक्टीरियल सेल मीडियम में डाले हैं तो उसमें कुछ एनलार्ज स्टेज में रहेंगे, कोई राउंड रहेगा, राइट, कोई और छोटा राउंड रहेगा. तो आप क्या करो, उसको फिल्टर लगाओ. फिल्टर में से वो मीडियम और बैक्टीरियल सेल जो है पास करेंगे तो होगा क्या, पास करेंगे तो क्या है ओनली सेम साइज के सेल्स जो है उस फिल्टर से फिल्टर आउट होंगे और नीचे आएंगे. राइट, सो उससे क्या होगा कि सेम साइज के सेल्स वी कैन ऑब्टेन. ओके, एंड देन दैट all the cells are in same phase. That's why the size of that cells are identical. Okay, similar. और इस तरह से फिल्टर करके भी अपन
सेम फेज वाले सेल्स अपन आइसोलेट कर सकते हैं और फिर उन सेल को बैक्टीरियल मीडियम में कल्चर कर सकते हैं एंड इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द सिंक्रोनस कल्चर. ओके, सो these are the three methods: batch culture, continuous culture by chemostat, turbidostat and synchronous culture. ओके, समझ में आया ये? Now we are going to discuss here the some physical factor required for the bacterial growth. Okay, so on the basis of some physical factor, the bacteria classify into the different category. Okay, तो आप यहाँ पे आपके पर सिलेबस, आपके सिलेबस में पीएच है और टेम्परेचर दिया हुआ है. सो पीएच के बेसिस पे क्या है कि बैक्टीरिया क्लासिफाई इनटू दी थ्री टाइप्स: एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड अल्कोलोफाइल्स. इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया able to grow in a acidic medium. Okay, means the जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका जो पीएच है 0 से 5.5 के नीचे रहेगा या विद इन दिस रेंज में सपोज उसका पीएच है और उसमें ग्रो हो सकते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया को एसिडोफाइल बोलेंगे. ओके, वैसे ही न्यूट्रोफाइल मीन्स व्हाट कि बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया एबल टू ग्रो इन अ न्यूट्रल मीन्स नियर 7. ओके, मीन्स 5.5 से 8 के बीच में सपोज जो ग्रो होते हैं उसको अपन न्यूट्रोफाइल्स बोलेंगे. ओके, एंड द अल्कोलोफाइल्स मीन्स व्हाट कि पीएच 8 से ऊपर और 11.5 से नीचे. ओके, सो ये रेंज के पीएच में सपोज बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वेरी वेल. So that bacteria known as a alkylophiles. Okay, so depending upon the pH, the bacteria classify into the three categories: acidophiles, neutrophiles and alkylophiles. Okay, likewise the temperature also a crucial factor and which is affect the bacterial growth. Okay, and on the basis of temperature the bacteria also classify into the different types: saccharophiles, mesophiles and thermophiles. These are the three important class. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हैं कि saccharophiles means what कि बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं. मीन्स द बैक्टीरिया एबल टू ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड हैज एन ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर. मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? सैक्रोफाइल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैसिलस सैक्रोफिलस. ओके, क्लामाइडोमोनास निवेलिस. ओके, सो दिस बैक्टीरिया रिक्वायर्ड द बिलो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ. सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया नोन एज ए सैक्रोफाइल्स. मेसोफाइल्स मीन्स मीडियम रेंज में, मीन्स द बैक्टीरिया हैविंग एबिलिटी टू ग्रो in between 20 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जिस इंक्यूबेटर में 20 to 45 के रेंज में सपोज वो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, सो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कंसिडर एज ए मेसोफाइल्स. ओके, फॉर एग्जांपल Escherichia coli, Trichomonas vaginalis. Okay, so these are the some examples which can able to grow in between 20 to 45 degree Celsius temperature. And thermophiles means what? The bacteria can grow at 55 degree Celsius or above 55 degree Celsius. Okay, up to 65 degree Celsius temperature. Right? So 55 to 65 के रेंज में सपोज वो ग्रो हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन थर्मोफाइल्स. ओके, हाई टेम्परेचर पे ग्रो होने वाले. और हाइपर थर्मोफाइल्स मीन्स व्हाट कि जो 80 से 113 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया, उतने टेम्परेचर पे भी वो ग्रो हो सकते हैं. उस टाइप के बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं? हाइपर थर्मोफाइल्स बोलते हैं. राइट? सो दीज आर द सम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर. राइट? सो पीएच के बेसिस पे 3 कैटेगरी है, टेम्परेचर के बेसिस पे 3 कैटेगरी है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी होता है. जैसे आपने देखा होगा कि
obligate aerobes. Obligate aerobes means aerobic bacteria means it is required the oxygen. Obligate aerobe means what? Completely depends on the atmospheric O2 for growth. Such type of bacteria known as the obligate aerobes. Facultative aerobes means anaerobes means what? It does not require the O2 for growth, but grow better in its presence. Means वो ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिला तो उसके प्रेजेंस में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. वैसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं. एरोटॉलरेंस एनोरोबिक. एरोटॉलरेंस एनोरोबिक मीन्स व्हाट? कि द बैक्टीरिया ग्रो इक्वली वेल इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द O2. मीन्स उसमें ग्रोथ में कोई चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन रहे या ना रहे वो बैक्टीरिया वैसे ही ग्रो होता है, राइट. सो इसको बोलते हैं एरोटॉलरेंट. ऑब्लिगेट एनाएरोब्स. ऑब्लिगेट एनाएरोब्स मींस व्हाट? कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्रो ही नहीं होगा, राइट. विदाउट ऑक्सीजन ही ग्रो होगा, ऑक्सीजन रहे तो वो ग्रो ही नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अपन ऑब्लिगेट अनएरोबिक बैक्टीरिया. और माइक्रो एरोफाइल्स मींस व्हाट? कि इट रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन बट इन small quantity. Okay, means 2 to 10% oxygen is sufficient for its proper. So कम quantity में oxygen required रहता है, उसको बोलते हैं micro aerophiles. So these are the different types of microorganisms which affected by the various types of physical factor, pH, temperature and oxygen, and on the basis of growth of that microorganism at various pH, at various temperature and at various oxygen concentration, they classify into the different types or different category. Okay, so यहाँ पे अपन अभी रुक जाते हैं. Okay, अभी तक के जो भी मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को. क्वेश्चन है किसी को कुछ?